Good morning, student and my friends. Today topic is the reciprocating compressor. Introduction to the reciprocating compressor. A reciprocating compressor or a piston compressor is a positive displacement compressor that uses the piston driven by a crankshaft to deliver a gas at a high pressure. Okay, you see in blue color line it is a suction line, and this is a suction valve. In that side air is enter to this cylinder, and this is the valve inlet manifold also called, and this is a piston, and it is a crankcase, and it is a cylinder, and it is a crank and connecting rod, sorry, and it is a crank, and it is a delivery pipe, and it is a delivery valve. Okay, or a discharge line. That side it is a pressurized gas is going. Okay, so this crank is rotated with the help of mechanical power or electric power, and this crank is connected to the connecting rod, and connecting rod is oscillating, and that that provide the movement in piston. Okay, when the piston is moving down, so this side here is enter, and this valve is open, and piston is moving down. So the upper part of this piston, there is a pressure is drop, so air is outside air is enter to the cylinder, and when the piston is moving upward from BDC to TDC, this inlet manifold or a valve is closed and delivery valve is open, so it is push up the air to discharge line, and we keep this air in a storage tank. Okay, so mainly a reciprocating compressor is function is suck the air from low pressure or a surrounding pressure to discharge at high pressure for for different application where pressurized air is required. Okay, next, the application of reciprocating compressor. So a reciprocating compressor used in oil refineries. Okay, there are a number of gases we have to remove or convey one place to another place. Okay, we have used gas pipeline, chemical plants, natural gas plant. Okay, okay, refrigeration. In refrigerator, compressor is a necessary part. Okay, it is very important part. It is moving the refrigerant one part to another, another to another. The another application, one specialty application is blowing of plastic bottle made of polyethylene terephthalate. देखिए यहाँ पे हम बोतल को इन्फ्लेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. सो जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको हम प्लांट में एज ऑटोमेशन में वाल ऑपरेटिंग ट्रांसड्यूसर टाइप के जो अरेंजमेंट में वाल को ओपन अप करने में हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक अरेंजमेंट में. दैट इज़ अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द this reciprocating compressor. Okay, you see in this picture it is a crank, and it is a connecting rod, and it is a piston, and this is a cylinder, and this side here is entered to the cylinder, and it is a valve inlet suction valve, and it is a delivery valve. That is a had divided suction side and delivery line. This side is going at a high pressure uh, air or gas going, that that utilize this pressurized air. Okay,
देखिए when the piston moves down, okay, the pressure inside the cylinder is reduced. When the cylinder pressure is reduced below the atmospheric pressure, the inlet valve is open and atmospheric air is drawn into the cylinder till piston reaches the bottom dead center. The delivery valve remains closed during this period. When the piston moves up, the suction valve is closed and delivery valve is open up, and the pressure of the air inside the cylinder increasing steadily, and outlet valve is then is open up, okay, to the delivery pipe. At the top dead center of the piston, a small volume of the high pressure air is kept in clearance space. When the piston moves down, this air is expanded and pressure reduced. Again, inlet valve is open and thus cycle is repeated. Okay. देखिए जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव करता है तब तो ये सक्शन वाल्व खुल जाता है और बाहर से एयर सिलेंडर के अंदर फिलअप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से बाहर से एयर अंदर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है। और जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जब मूव करेगा BDC से TDC की तरफ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वो अबव होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये जो आपका सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा और ये डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और एयर इस लाइन में पुशअप, उस एयर को पुशअप कर देगा और पुश करके किसी सिलेंडर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और एज ए कंटिन्यूसली इसको हम पाइप के अंदर रेगुलेट भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो क्रैंक है ये इसको कोई ना कोई घुमाने के लिए हमें रखना पड़ेगा, दैट इज़ प्राइम मूवर। इट में इलेक्ट्रिक मोटर और ए mechanical power arrangement. So overall input is goes through this crank, okay, and that result pressurized is air produce. Okay, the compression process। देखिए जब आपका ये कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो इसमें जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, ये इतने तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक और आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें आप पीवी डायग्राम देखेंगे तो इसमें आप ए से बी डैश जो प्रोसेस नज़र आ रहा है, ये आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जिसमें आपका हीट ना तो सिस्टम के अंदर आता है ना ही बाहर जाता है। ओके, इसमें आपको मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी ऑफ गैस इस ऑब्टेन होता है। ओके, और जो आपका पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ए से लेके बी। ओके, इसमें आपका जो रूल्स लगेगा वो पीवी की पावर n इक्वल टू सी, ठीक है, n इज़ द पॉली इंडेक्स। इस प्रोसेस के अंदर जब आपका एक स्टेज लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे आप एयर पुशअप करता है, ड्यूरिंग प्रोसेस हीट अंदर से बाहर जा भी सकती है, बाहर से अंदर भी आ सकती है, तो बोथ रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। तो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ओके, इट इज़ नॉट ए आइडियल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। व्हेन द कंप्रेस्ड एयर is stored in a tank, it loses the heat to the surrounding and it attains the temperature of surrounding after some time. Hence the overall effect of the compression process to be increase the pressure of gas keeping constant temperature. Okay, the isothermal compression is suitable if the compressed air is to be stored। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, कोई आपका एयर है, ठीक है, उसका हमें प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। तो ड्यूरिंग प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो हमें क्या है, वर्क की रिक्वायर्ड होती है। तो वर्क जब उस पर लगेगा लो एनर्जी लेवल पे, तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट।
तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ उस प्रोसेस में हीट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो एज ए रिज़ल्ट आपको जो मिलेगा, जो आपने एनर्जी इनपुट किया है उसके बदले आपका हीट बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो वर्क इनपुट होगा जस्ट इक्वल टू हीट रिजेक्ट। ओके, सो this condition is taken, then temperature is maintained is constant. Okay, so during process we have to reject the heat, then we maintain the temperature of this process at constant level. Okay, so this is the TS diagram. Okay, in this TS diagram, A to B dash, it is isentropic process. In during process A to B dash is you see is a vertical line that is perpendicular to the entropy scale, so it is a constant entropy. A to B entropy is reduced. Entropy is reduced due to the heat is going outside the system during process, so that is possible in polytropic process. And A to B double dash, it is a isothermal process. In that, total work is converted into work that is given to this process. We have to reject the heat, and also we get the pressurized gas. So isothermal, it is a where it is suitable, where compressed air is to be stored. Okay, next slide, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। देखिए, हमें कोई भी कंप्रेसर है को हमें पावर कितनी देनी पड़ेगी, वो वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा ना। और इसमें हमें आपने 3 प्रोसेस आपने देखे हैं, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक और आइसोथर्मल। तीनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होगा कंप्रेसर के लिए, वो चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। सो बिफोर ड्राइविंग एनी डेरिवेशन वी हैव टू मेक इट सम assumption required. Okay, first assumption, there is no pressure drop during the suction and delivery valve. Okay, complete compression process take place in one cylinder. There is no clearance volume in compressor cylinder. Pressure in the suction remains constant. Similarly, pressure in delivery also constant. The working fluid behave as a perfect gas. And next assumption, there is no friction loss. So the cycle can be analyzed for 3 different cases. We have see next slide. The work done can be obtained from the PV diagram. Okay, the pressure P1 is the pressure of the air in kilowatt per meter square, and before compression volume is V1 equal to volume of the air, and before compression temperature T1, and before these are the pressure, temperature at different stated. Okay, and is the RPM, mass flow rate inside, that is we have to in kg. Okay, next slide. Polytropic, the polytropic compression, we have to find the work done for this process, and it is a PV diagram for that process. 1 2 is the polytropic process, and that follow this law, PV की power n equal to C, and initial state that is process start P1, V1 and T1, and this compression P2, V2 and T2. Okay, we have to find the areas of these PV diagrams. So let n is the index of the polytropic compression, and net work done on air
per cycle is given by, so area हमें जो पीवी डायग्राम का एरिया देखना पड़ेगा। इसमें एरिया है 1 2 3 4 और 1। तो ये जो आपका इस एरिया को हम निकालेंगे तो हमें इसका वर्डन निकलेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें एक तो ये देखना पड़ेगा ये एरिया किस किस एरिया से बना है। तो पहला जो एरिया है वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन 1-2 प्रोसेस, ओके। तो ये हो गया आपका। और वर्क डन ड्यूरिंग एयर डिलीवरी इट इज़ अ 2-3, ये 2-3 क्या है, एयर डिलीवरी प्रोसेस, ओके। माइनस वर्क डन ड्यूरिंग सक्शन, तो ये 4-1 जो प्रोसेस है इसमें आपका कितना वर्क आपका लगा है, दैट इज़ नेगेटिव। क्योंकि जब हम खींचते हैं कोई चीज़ खींचेंगे तो उसमें वर्क डन लगाना पड़ेगा, ठीक है। या ऑटोमेटिकली भी जो क्लियरेंस वॉल्यूम होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाउंस बैक होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट वर्क है। तो यहाँ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1-2 इट इज़ अ पॉलीट्रॉपिक वर्क डन। So already in thermodynamics we have to know about the formula of the polytropic compression process for a expansion formula, that is the formula P2 V2 minus V1 P1 V1 over n minus 1, that is the formula for the polytropic process, plus process 2-3 के लिए आपका क्या हो गया, P2 V2 हो गया माइनस P1 V1, ओके। भाई आपको प्रेशर वॉल्यूम का तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है एरिया को। भाई यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हम निकालेंगे तो हमें किसका एरिया पता होना चाहिए, एक तो हमें इसका प्रेशर पता होना चाहिए, दूसरा V2 इस पॉइंट के करस्पॉन्डेंस वॉल्यूम, तो ये टोटल एरिया का हमें पता लग जाएगा ना। तो ऐसे ही हमें P1 V1 के लिए निकालेंगे। तो अब इनको इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। देन सम आफ्टर कैलकुलेशन द फार्मूला रिजल्ट इन दिस फॉर्म, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या रिलेशन को और छोटा करना पड़ेगा, या टेम्परेचर जो प्रेशर के और टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में रिलेशन है इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लेके आएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है और जब टेम्परेचर के फॉर्म में होगा तो सिर्फ एक ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी, जो कि एक प्रॉपर्टी होगी तो बड़ा आसान रहेगा उसको कैलकुलेट करना भी, और क्योंकि टेम्परेचर स्केल जो भी है आसानी से मेजर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू MR/T1, दैट इज़ अ गैस लॉ। और ये स्टेट 1 के लिए, स्टेट 2 के लिए, ओके। पुट दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशंस एंड देन वी रिजल्ट इज इन दिस फॉर्म, W इक्वल टू n/n-1 और MR/T2 - T1, ओके। एंड अगेन इसमें से T1 हमने कॉमन निकाल लिया तो रिजल्ट इस फॉर्म में आ गया आपका, ठीक है। That is the formula for polytropic compression process, that is Verdun, okay. Again polytropic process, that is the relation temperature pressure relation. So we also put this temperature ratio in these equations, ठीक है। और RT1 का वैल्यू हम रख सकते हैं, MRT1 का वैल्यू P1 V1, अभी जो हमने रिलेशन आगे लिखा था उसी से हम ले सकते हैं। तो ये रिजल्ट इस तरह का भी रिलेशन हम कहीं हमें प्रेशर रेशो पता है और इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम पता है तो हम तब इसका वर्डन निकाल सकते हैं आसानी से। अब इंडिकेटेड पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, इंडिकेटेड मीन्स थियोरेटिकल, दैट पावर थ्योरेटिकल पावर। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ड एंड मल्टीप्लाई एन, ठीक है। और यदि आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2n करना पड़ेगा, क्योंकि आपका
बोथ अप एंड डाउन दोनों में आपको क्या मिलेगा, गैस डिलीवरी मिलेगी, हाई प्रेशराइज गैस मिलेगा। तो इसमें आपका डबल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, that is isentropic compression. This is the isentropic process. So isentropic compression process follow the which law is the PV की power gamma equal to C. Gamma is the index of the isentropic process. तो इसमें आपको वही PV डायग्राम हमें बताना सेम टू सेम वही डायग्राम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बस जो लॉ है वो लॉ चेंज होगा। वहाँ PV की पावर n था, यहाँ PV की पावर गामा होगा बस। बाकी एरिया वेरिया तो सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे पोल इंडेक्स n था, यहाँ पे हमने उस n की जगह गामा कर दिया। बाकी P2 V2 ये सब एवरीथिंग इज सेम एंड रिलेशन दैट लाइक फॉर्म एंड सेम गैस laws at state 1 and state 2 and Verdun formula, and only change n shifted into gamma and put this relation in pressure ratio form. So this is the formula of the isentropic process Verdun for compressor. Okay, next process isothermal. Isothermal process compression follow PV की पावर, PV की पावर क्या होगा, V की पावर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स क्या रहता है, 1 रहता है। ओके, इक्वल टू कांस्टेंट, या PV V की पावर n इक्वल टू V होता है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रोसेस 1 टू isothermal process है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, so area is same like that. So P1 V1 is this is the formula for the isothermal process work done. दिस इज़ द फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्डन का फार्मूला क्या होता है, वी हैव टू ऑलरेडी ड्राइव। ओके, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया और यहाँ पे जो भी हमारा रूल्स लगता है स्टेट 1 2 में क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, तो यहाँ पे P2 V2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, P1 V1 है, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो फिर बचेगा क्या, P1 V1 यही बचेगा। ओके, यहाँ पे V1 डिवाइडेड V2 इक्वल टू P2 बाई P2। तो हम इस वॉल्यूम को प्रेशर के फॉर्म में भी इस रिलेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। सो दिस इज़ द वर्डन फार्मूला फॉर द आइसोथर्मल कंप्रेशन। इफ़ यू डिजर्व और रिक्वायर्ड वी हैव टू do as a compression process in an isothermal manner, so you have to approach this Verdun formula. Okay, next here isothermal efficiency. So isothermal efficiency is defined as the ratio of the isothermal input to the actual work input. This is used for comparing the compressor. Okay, generally isothermal process is practically it is not possible, so but even theoretically we have to approach. Okay, so isothermal work input is always lesser compared to actual. So जो आपका आइसोथर्मल वर्क इनपुट होगा वो कम होगा, किसी भी कंप्रेसर को जो इनपुट देंगे लिस्ट वर्क रिक्वायर्ड होता है, और एक्चुअल ज़्यादा होगा, जो रेशो निकलेगा वो आपका आइसोथर्मल एफिशिएंसी होगा। और आइसोथर्मल वर्क इनपुट हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे और एक्चुअल वर्क हम सीधा मेजर कर सकते हैं कि कितनी ये एनर्जी ले रहा है, ठीक है। और एडियाबैटिक एफिशिएंसी क्या होगी, एडियाबैटिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक वर्क टू द एक्चुअल वर्क इनपुट। सो एडियाबैटिक के लिए भी हमने वर्क डन का फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव किया है, और इसके लिए हम एक्चुअल वर्क तो सेम ही रहेगा दोनों प्रोसेस में चाहें तो। इस वजह से हमें क्या है इसकी एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। इन दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. So volumetric efficiency we have to calculate it. First we have to draw a PV diagram. They are already drawn. In that we have take the clearance volume 3 to 6 cross 3 to 6 is that gap is VC, that is a clearance volume. Okay, and 1 2 is the process, is the polytropic process, and 2 3 air delivered to the discharge line, and 3 4 air inducted to the cylinder. Okay, air into the
cylinder, and piston position on, just moving the TDC, and 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, just move the piston from TDC to BDC. Okay, so it is a ratio of free air delivered to the displacement of the compressor. The second definition, ratio of swept volume to this effective swept volume to the swept volume. In that diagram, clearance volume is present, we have already talked. And the volumetric efficiency factor कितना है, 1 है मैक्सिमम, एंड रेंज कितना रहता है, इस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली 60 to 85% इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जनरली रहता है. और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फार्मूला है इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड स्वेप्ट वॉल्यूम. तो इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम है आपका 4 to 1 process, so volume is 1 is large and volume V4 is less, so difference V1 minus V4, okay, divided V1 V1 minus V3, that is we have to do something, that is moving of the piston and opening of this suction valve, that overall whole volume change that. Okay, so this volume ratio is a volumetric efficiency, and the clearance ratio is the clearance volume to the swept volume, and VC divided VS, okay, equal to जनरली गामा बोलते हैं या, और ये 4 to 10% रहता है जनरली क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस रेशो. ठीक है, ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, यदि ज़्यादा रहेगा तो फिर ज़्यादा एयर नहीं बाहर से आ पाएगा, और कम नहीं रहना चाहिए, फिर वाल ओपन अप होने में दिक्कत होगी और ये सीधा पिस्टन हेड को स्ट्रिक कर सकता है. ओके, और यहाँ पे ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला जो भी हमने लिखा था V1 माइनस V4 डिवाइडेड V माइनस V3. अब इसमें हमने क्या किया, ऊपर वाली टर्म में माइनस V3 और प्लस V3 ऐड कर लिया. अब इसमें से फिर हमने क्या किया, कुछ स्टेप को अलग कर लिया, जैसे कि V3 डिवाइडेड ये जो ये वाला पार्ट है, इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया V1 माइनस V3 से, और ये जो पहला पार्ट है तो सेम हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने V3 से इस स्टेप में V3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और इसमें फिर इस V4 टर्म को V3 के नीचे लेके आ गए. ठीक है, ठीक है, फिर इसमें से V3 बाई इस तरह का कॉमन निकाला, फिर ये इसके अंदर ये इस तरह से फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे V3 डिवाइडेड V4 का एक प्रेशर रेशो के फॉर्म में हमने इसकी वैल्यू रख दिया. वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए. ठीक है, और ये जो टर्म है, ये क्या टर्म है, V1 माइनस V3. V1 माइनस V3 क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है, और V3 क्या है, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम है. तो ये क्या हो गया, एक कंप्रेशन रेशो हो गया. ओके, और ये V3 डिवाइडेड V4 को हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन से इसकी ये वैल्यू रखी. ओके, फाइनली ये आपका रिलेशन कंक्लूड होके आ जाता है. ओके, दैट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन. Okay, thank you. Having a nice day. Thanks for patience.